So please answer these following questions. First is write the formula and chemical name of following. First is baking soda. No need to say good morning. No need to say your presence here. This is automatic software. I come to know. Just answer my questions which I have displayed. So first question is write the formula and chemical name of first is baking soda. So you can see on the board, write the formula and the chemical name of following. First is baking soda. I didn't receive any answer yet. Baking soda. Chemical name. Don't just write formula. What is the name of it? Baking soda. Yes. What is the name? Chemical name of baking soda. No one replied me yet. Sodium. What sodium? Sodium bicarbonate. Harshada. Okay, total 12 students have already entered in. Sodium hydrogen carbonate. Wow, what an innovation. See from this, so please study. Student. Okay, those who have answered that. Second, bleaching powder. Fast, fast. Not visible. Okay. Now you can hear, I have refreshed the page. Please, if you can see, please answer the second bleaching powder. Now it is visible, beta. Please reply fast. Second question is about bleaching powder. Okay, answer it. Calcium oxychloride. Okay. I think it's because of heavy video. Will off my video so that you can just hear me properly. Okay, very good.
And then third is washing soda. So write about washing soda. Washing soda. Very good. See, some are writing, but you are missing one point. It has a water molecule also to it. You know that don't crystal in a crystalline form. Yes, dot H2O. That is the correct answer. Very good. So I think I should. I'm putting my video off because I think internet is very range is not so strong. So I think no issue is happening. We are able to communicate. Okay. The next is about alum. Right, the alum. What is chemical name? Alum. Potash alum. Okay. What the formula, beta? Sri Ratna. You have replied right. No, but I want formula also. So when I am moving to next question, please leave the previous one. So because I'm not going to wait for all of to answer, we are just moving ahead so that everyone is. This gives me time so that you are able to hear me. Right, there was some problem. I'm on when my video is on. I think it's taking a lot of bandwidth and it's just stopping, hanging. So now I have off my video. So I think now just communication is happening smooth. You are able to hear me. You are able to see the screen. Good. And next is Epsom salt. Epsom salt. Its chemical name and formula. Epsom salt. Epsom salt. Beta, what is the name? Magnesium sulfate. Yes, very good. So I want name also, na? Magnesium sulfate. Very good. Next is Goldberg salt. Goldberg salt. Goldberg salt. We have moved to next. See the Goldberg salt. It's sodium sulfate. Very good answer. Chervary is giving good answers. Very good. Ombre is active. Ame, very good. Next, write the formula also. Vedika, very good. Harshada, Prajakta, write the formula also. Shreya, good, very good. So I want all of you to be active or participate everything. The next question is hazards of radio substance and radiations. Just mention any one. Don't mention all. Just mention one. And if someone has already mentioned it, don't try to repeat it. So there are students which are not participating. Please participate. Advait, I can see Kshitij, Mayur, Rupam, Prajwal, Prahlad. So from these students, I have not heard. So please reply. Hereditary defects, very good. Causes disease like skin cancer. Okay, very good. Yes, it does. Penetrates the skin and causes disease like leukemia. Very good. This is the very specific answers. I like it. Very good. They affect even sea, then the fish bodies, and then they enter our human body also. Bone cancer. Yes. Very good. Okay, next. Name the disease which is caused due to excess consumption of food with added colors. कौन सा डिजीज है? एक पर्टिकुलर डिजीज है जो मैंने आपको पिछली बार बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको. I have shown you the handwriting of a person who was consuming this disease. Yeah, what is the full form of that?
ADH3. What is the full form? ADHD. Yeah, everyone is replying. What is the formula for full form for that? Bad handwriting. Oh, see, come on. I'm telling you what is the disease. That is not a disease. That is the effect. Bad handwriting is the effect of that. Attention deficit hyperactive disorder. Yes. These are very important key points which you have to write when the question comes. Don't forget these things. Attention deficit hyperactive disorder. See, I want everyone. See, I have kept group chat on, so you can see everyone can see each other chat. I can close it also. I have an option of disabling group chat where I can just see answers of a particular student only. You cannot see others chat. So I have kept it on so that anyone who does not know, just type it, just so that it goes in your memory. So I want everyone to reply. Okay, next. This is the last question. Name organizations which regulate food safety measures. Again, write full form, write full form, please. Don't do this fussy. What is the full form of these? I have told you 3 organizations which control this safety measures in foods. Like see recently MGM was what the monochloride substance which is we know China salt, उसको बैन किया था अभी फंसी ने इंडिया में. Food Safety and Standard Authority of India. Okay. What about FDA? Come on, FDA is not your वो फंसी का है. Food and Drug Administration. Okay, you are missing. Everyone is missing one more authority, and that is actually very important authority. एक और था जिसका सेंट्रल जेनीवा में है, स्विट्जरलैंड. ISO 22000. Yes, ISO 22000. Very good. Very good. So this is about your. फिर हमने पढ़ा था बेटा डाइस के बारे में पढ़ा था. And then we had studied about even deodorants. Okay, tell me what is the harmful compound in deodorant? There are 2 harmful compounds. Name those 2 compounds in deodorants. Oh, beta, again, alcohol will not affect your skin. When you drink, that is the effect. Yeah, aluminium, very good. Aluminium, what is the full name? Aluminium zirconium. Aluminium zirconium is the compound. Is the most harmful chemical in the deodorant. It creates disorders like headache, asthma, respiratory disorders, heart diseases, many, and this. Aluminium zirconium. And what is the second? Which creates various skin disorders and also causes skin cancer. Very good. It is aluminum chlorohydrate. Please, all students who are not able to answer, immediately see the correct answer. I am telling you, correct answer is aluminum zirconium, aluminum chlorohydrate, which actually possibility of various skin disorders and skin cancer is also happens because of that. Okay, very good, very good. I'm not on camera. I don't know if the internet will stop, so I'm not taking risk. So now let's start our new topic. So you can see whiteboard. Just type Teflon if you can see. Type Teflon. Teflon. If you can see the board, yes, very good. First, I want to ask you how many of you have or actually saw that Chernobyl disaster? Because we were discussing about the disadvantage of nuclear reactor. It just struck me. I have told you to, if you have seen Chernobyl disaster. Internet really slow.
No, okay. Okay, this is a nice series. It's available on Netflix if you have time or if you need some. I have it. Can take me also if you anytime we can meet. I don't know. So okay, so let's start over this topic, which is about today is about Teflon. No, basically, beta Teflon actually it's a polymer. It's a polymer of उसको बोलते हैं it's a polymer of tetrafluoroethylene. ये इसका पॉलीमर है. देयर इज अ साइंटिस्ट, ये अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने इसका डिस्कवरी किया एंड इट इज आल्सो डिस्कवर्ड बाय चांस. वो कुछ और कर रहा था एंड उसको ये मिल गया. उसका नाम था रॉयल जे प्लंग प्लंकेट. रॉयल जे प्लंकेट उसका नाम था. इट डिस्कवर्ड दिस टेफ्लॉन इन 1938. 1938 में उसने डिस्कवर किया. नो, द केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन इज, जो केमिकल नेम है टेफ्लॉन का, केमिकल नेम टेफ्लॉन का जो है वो है, दिस chemical name of Teflon is polytetra fluoroethene. ये इसका केमिकल नेम है. उसका फॉर्मूला है C2F4N. दिस इज द फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है. एक कार्बन का एटम का चेन है. यू नो, दिस इज लाइक कार्बन एटम चेन. और ये फ्लोरीन इसके आजू बाजू इसको कवर करता है, यू नो, सराउंड्स इट. ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल इसको कवर करता है. फ्लोरीन फ्रॉम अदर साइड्स, यहां से भी और पीछे से, यू नो, लाइक दैट. दिस इज लाइक कवरिंग इट. नो, ये जो है ना, ये स्ट्रेट नहीं है. ये एक्चुअली ऐसा स्पाइरल में इसको कवर करता है. स्पाइरल में, यू नो, इट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, लाइक दैट. स्पाइरली, इफ यू कैन सी, इट्स अ स्पाइरल थिंग. होल स्ट्रक्चर इज स्पाइरल. मतलब ऐसा ऐसा करके ये पूरा फ्लोरीन इसको कवर करता है. So if you are able to hear me, just type C2F4. C2F4. Okay, with my handwriting, that is the reason I am speaking also. So when I am speaking like tetra, so it's little tough to write on this board. I'm trying my best, so it will take some time to adjust. So that's the reason when I'm writing, I'm speaking also. So just I will try to write much slower so that it's much clearer to you. Now, what is Teflon basically? अगर आप देखेंगे Teflon, you know, when someone goes in space, you know, someone goes in space, or you know, when you are in, or it's raining outside and you are in your raincoat, and not only that, when you are cooking, your mother is cooking in kitchen, you know, all these places you will find Teflon. It's really you will see it everywhere. Now the Teflon का basically कहाँ पे when it was discovered, it was found that ये एक, it acts like a inert compound. ये किसी के साथ react नहीं करता है. And second thing, it's very slippery. And इसका high temperature है. You know, it has a very high temperature. Of melting point of Teflon is around 327 degrees centigrade, which makes it ideal for cooking. So this is about Teflon. So now there are a lot of various properties, and there is some question which is also told you what is the property of Teflon because of which it is used in non-stick wares. Obviously, this is the reason for that. Obviously, it's a high melting point, and also it is a non-stick pan. तो आपको डोसा बनाना है, you know, ऑमलेट बनाना है, it's the best way to cook. तवा आता है, टेफ्लॉन के तवा आते हैं, it's coated on that. तो दैट्स हाउ इट इज कोटेड ऑन तवाज भी. तब मोस्टली टेफ्लॉन तवा आपके हर एक के घर में आपको पाए जाएंगे जिसमें आप यू कैन मदर यूज फॉर कुकिंग. सो देन देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन.
So if you followed me till now, please write yes, why. If you are following me yahan tak, if you are following me, just type why. Okay, good. I will try to write much slower so that my writing is visible to you. Now properties. Then first property जो इसका है, the atmosphere and the chemical substance have no effect on Teflon. एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट नहीं है और केमिकल सब्सटेंसेस का भी कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर. Neither atmosphere has any effect on it. No atmosphere can affect it. Neither any chemical substance can affect on it, on the Teflon. That's the reason it's used widely. Even in space suits it's used. जब even actually अगर आप देखेंगे जो first moon landing हुआ था, the person who went there, he was actually Teflon was coated on his whole the cloth which he is wearing, so that was used there. And और दूसरा ही नहीं, neither water or oil can stick on Teflon. इसलिए अगर आप देखेंगे कुकिंग के लिए बहुत ही आइडियल यूज होता है. वाटर एंड ऑयल दोनों इसके ऊपर स्टिक नहीं करते हैं. दे डोंट स्टिक ऑन टेफ्लॉन. एंड देन ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, हाई टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट टेफ्लॉन. इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी है 327 डिग्री सेंटीग्रेड. और टेफ्लॉन जब आपने कोटिंग किया, क्योंकि ये स्लिपरी है और इसके ऊपर कुछ स्टिक नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाता है, इट्स इजी टू क्लीन ऑल दोस आइटम्स व्हिच आर कोटेड विद टेफ्लॉन. इजी टू क्लीन. My handwriting is, you are able to read my handwriting, please write read. If you are not able to read now, also write not read. Okay, now you are able to read. Okay, okay. So I will write slow, much slower, so that it's visible. And these are some properties of Teflon. And there is something like, because of this property, there are a lot of uses of Teflon. सबसे पहला है, Teflon is a poor conductor of electricity. It's a poor conductor of electricity. It's a poor conductor of electricity. ये इसका पहला प्रॉपर्टी. इसकी वजह से क्या होता है, Teflon cladded wire and parts are used in high technology electronic instruments. उसको जो वायर को उसको क्लैडिंग किया जाता है टेफ्लॉन का. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज ऑफ टेफ्लॉन बिकॉज ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था, नॉन स्टिक किचन वेयर्स. नॉन स्टिक किचन वेयर्स के लिए भी यूज किया जाता है इसको. एंड देन द कलर मेटल शीट्स ऑफ 2 व्हील जो आप देखते हैं यहाँ 4 व्हीलर्स आर मेड फ्रॉम टेफ्लॉन कोटिंग. तो जो आप गाड़ी का अलग अलग कलर देखते हैं, यू नो, दे ऑल एक्चुअली उस पर टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है ताकि उसके ऊपर हाई टेम्परेचर, क्योंकि गाड़ी आप पार्किंग मैक्सिमम इंडिया में देखते हैं बाहर पार्किंग होता है, या यू नो रेनी सीजन में बहुत है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हर एक गाड़ी में यू नो टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है ताकि उसको किससे, हाई टेम्परेचर, सन का हाई टेम्परेचर से बचाया जाए, हाई टेम्परेचर से उसको बचाया जाए और रेन से बचाता है टेफ्लॉन. सो दिस इज द लॉट ऑफ यूजेस ऑफ टेफ्लॉन. आई होप आपका यहां तक क्लियर हो गया है. सो इफ इट इज क्लियर, जस्ट राइट टेफ्लॉन. ओके, गुड. देन द नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा आप लोगों का, इट्स अबाउट, अभी जो है छोटे छोटे टॉपिक है, यू शुड जस्ट नो देम. इट्स कोटिंग, पाउडर कोटिंग. यू हैव टू नो द डिफिनेशन क्या है इसका प्रोसेस क्या है. अब ये जो पाउडर कोटिंग है, ये एक सिंपल मेथड है. कोटिंग पे तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब कोटिंग क्या है. कोटिंग मतलब किसी को आपको कवर करना है. तो ये कौन सा कवर करना है, पाउडर का कवर करना है. दैट इज व्हाट पाउडर कोटिंग इज नोन एज. इट्स अप्लाइंग ए लेयर which is harder than paint on the surface of an iron object to prevent rusting. अभी आप बोलेंगे सर हार्डर देन पेंट कैसे, अगर आपने देखेंगे, यू नो, whenever suppose this is a wall and you are applying some paint,
पेंट लगा रहे हैं, यू सी इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग, और आप रोलर से लगा रहे हैं, स्टिल टेक्स टाइम, उसको कितना थिक कर सकते हैं, उसको आप थिक नहीं कर सकते हैं, इसका एक लेयर लग गया हो गया। बट यहाँ पर जो ये पाउडर कोटिंग है, इट्स ए वेरी नाइस मेथड। इससे क्या होता है, इट्स इन दिस मेथड ए पॉलीमर रिजन और ए पिगमेंट एंड सम अदर इंग्रेडिएंट्स आर मेल्ट मिक्स्ड, फिर उसको कूल किया जाता है, उसको भी पाउडर किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या क्या इसका है, इसमें एक पॉलीमर रेजिन रहता है, कोई भी पॉलीमर, जैसे अभी हमने टेफ्लॉन देखा वैसे ही कोई एक पॉलीमर रहेगा, और पिगमेंट देंगे, कौन सा, किसके लिए, कलर के लिए, एक पिगमेंट होगा, और सम इंग्रेडिएंट आर मेल्ट, ये मेन है इसमें, पॉलीमर और पिगमेंट कलर देने के लिए, जो आपको कौन सा कलर देना है। तो पाउडर कोटिंग कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है, इसको इसको पहले क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, इसको पॉलीमर और जो भी पिगमेंट और कुछ और इसमें ऐड किए जाते हैं इंग्रेडिएंट्स, फिर इसका पाउडर बनाया जाता है, इस सब का फिर इन सब का फिर एक पाउडर, इन सब का एक मेल्ट करके मिक्स करके फिर इसका एक स्मूथ पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर को यूज किया जाता है फिर कोटिंग के लिए। नो, ये पाउडर कोटिंग होता कैसे, ये जो पाउडर कोटिंग है, स्प्रेड ऑन द पॉलिश मेटल, इसको डायरेक्ट स्प्रे किया जाता है, एक गन रहता है एंड उसमें ये पाउडर कोटिंग डालता है एंड यू स्प्रे दैट ऑन किसी भी मेटल पे जिसको आपको कोटिंग करनी है, इट इज स्प्रेड ऑन दैट। और किससे किया जाता है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिस्पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्प्रे किसी भी गन से नहीं किया जाता है, जिससे किया जाता है इट्स ए स्पेशल इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिस्पोजिशन बोलते हैं, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे। दिस इज द गन, इसका शॉर्ट नेम है, इसको बोलते हैं ESD, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे। अभी आपको मालूम है जो ये कोड क्या है, राइट ESD, यहां तक सबने फॉलो किया तो राइट ESD। नो, अभी जो ये पाउडर यहां से स्प्रे किया जाता है ना बच्चों, इसमें क्या हो जाता है, एक चार्ज क्रिएट हो जाता है इस पार्टिकल्स पे, पाउडर के ऊपर। दिस बेसिकली इन दिस मेथड पार्टिकल जो है आपका पाउडर का, इसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज दिया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, एक यूनिफॉर्म लेयर ऑफ पाउडर चिपक जाता है मेटल के ऊपर। तो ये मेरा मेटल है, ये मेरा मेटल है, और ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिस्पोजिशन से मैं स्प्रे कर रहा हूं। तो जब मैं स्प्रे कर रहा हूं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं जो निकलेंगे यहां से, दे आर चार्ज पार्टिकल, दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज पार्टिकल। तो ये मेटल पे जाके चिपक जाएंगे, दे विल जस्ट स्टिक बिकॉज इसमें चार्ज है, एंड दे आर हाई विथ हाई प्रेशर, दे आर थ्रोन ऑन दिस मेटल, सो दे यूनिफॉर्मली एक डिपोजिशन ऊपर एक क्रिएट हो जाता है। फिर क्या किया जाता है, देन दिस ऑब्जेक्ट इज हीटेड इन द ओवन फॉर लॉन्ग विद दिस कोटिंग, इसको फिर हीट किया जाता है, जैसे आपने इसके ऊपर डाल दिया फिर इसको हीट किया जाता है। Obviously, when you heat it, a chemical reaction उसके ऊपर occur हो जाता है in the layer, उससे क्या हो जाता है, formation of long cross link polymer chain create हो जाता है, long cross linked, start saving things, cross link polymer chain बन जाता है, polymer chain बन जाता है, and this is your coating basically। और ये हाईली ड्यूरेबल है, हार्ड है और अट्रैक्टिव भी है। और इस पाउडर कोटिंग सिर्फ मेटल पे ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आप प्लास्टिक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, या मीडियम डेंस फाइबर पे भी यूज किया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट पाउडर कोटिंग। इफ ऑल ऑफ यू यहां तक किसी को सब समझ आया, प्लीज राइट पाउडर कोटिंग। वेरी गुड। नाउ बेटा, just to to memorize or remember, or if you want to write in an exam in a very nice way, just remember this diagram.
सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा, आपको कोई भी जो मेटल सरफेस है आपको जिसके ऊपर पाउडर कोटिंग करना है, तो पाउडर कोटिंग आपको करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसको सबसे पहले ब्लास्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे ब्लास्ट इट, ब्लास्ट मतलब उसको फोड़ना नहीं है, उसके ऊपर ब्लास्टिंग करना है, सैंड ब्लास्टिंग। उससे क्या होता है, सैंड ब्लास्टिंग इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर ए मेटल सरफेस इन नीड फॉर रेस्टोरेशन। इट रिमूव्स डर्ट। बेसिकली वो जो ब्लास्टिंग है वो क्या करता है, इट रिमूव्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिमूव्स डर्ट, ग्रीन, ग्रीन मतलब ऑयल या ग्रीस, रस्ट और करोजन, ये रिमूव कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा मेटल मैंने लिया और उसके ऊपर मैंने पाउडर कोटिंग कर दिया, उसके ऊपर रस्ट लगा हुआ था, उसके ऊपर कुछ ऑयल के, तो वहां पर वो उस सरफेस पे प्रॉपर कोटिंग ही नहीं होगा, क्योंकि मेटल उसमें चार्ज है, वो उसके ऊपर अट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो मेरा मेटल कोटिंग स्मूथ नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट प्रोसेस इन एंड पाउडर कोटिंग इज यू हैव टू डू सैंड ब्लास्टिंग, यू हैव टू प्रिपेयर दैट, इट हैज टू बी फुल्ली वेल प्रिपेयर्ड। तो उससे सैंड ब्लास्टिंग किया जाता है उसको। Not only that, then prepare it basically. Then prepare consists of applying the metal pre-chemical solution to neutralize the surface impurities. क्योंकि उस पर कुछ और चार्ज क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जो मैं पाउडर फेंक रहा हूं इट्स एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिकली उसको नेगेटिवली चार्ज दिया जाता है उसको। एंड क्लीन ऑफ इट एंड वही डिब्रीज एंड प्रिवेंट रस्ट क्रोजन। फिर पाउडर इट, यहाँ पे फिर एक्चुअली आप उसको स्प्रे करते हैं ESD से। एंड देन क्योर इट मतलब उसको आप ओवन में हीट करते हैं, तो वो उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट होता है, जो मैंने बोला क्रॉस लॉन्ग क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन क्रिएट हो जाता है। सो दैट्स हाउ द फुल कोटिंग इज डन। So now I would, this is, you can just make notes or take screenshot of it. So then एक तो ये प्रोसेस हो गया पहला आपका पाउडर कोटिंग। देन देयर इज सिमिलर प्रोसेस जिसको कोटिंग ही कर बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा हम। सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। हमने अभी तक टेफ्लॉन के बारे में पढ़ा, टेफ्लॉन क्या होता है। देन वी सॉ अबाउट पाउडर कोटिंग, एंड पाउडर कोटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमने देखी, ESD, एंड देन हमने देखा कैसे वो हीट करता है उसके ऊपर, देन लॉन्ग क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन क्रिएट होता है, एंड दैट्स हाउ पाउडर कोटिंग इज हाईली ड्यूरेबल एंड हार्ड एंड अट्रैक्टिव ऑल्सो। वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था पाउडर कोटिंग हम प्लास्टिक के ऊपर भी कर सकते हैं, तो मीडियम डेंस फाइबर भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस जो आपको बुक में है, विच इज अबाउट एनोडाइजिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग, if you can follow me, just write type anodizing. Why I tell you keep typing, because our way of communication is only through audio with your chat, yeah, so I can understand that you are there with me. Okay, so anodizing में बेसिकली ये बेटा जो एल्युमिनियम है ना, ये इट्स अ वेरी यूनिक एलिमेंट। एल्युमिनियम जनरली अगर आप देखते हैं आयरन के ऊपर जब रस्ट होता है ना, वो उसको खा जाता है, ये रस्ट ईट्स अवे दिस। आयरन के ऊपर जब ये रस्ट लगता है, इट ईट्स अवे एवरीथिंग, ये रस्ट है उसको खा जाता है। वाइल एज एल्युमिनियम पे जो रस्ट लगता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर क्रिएट करता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट हो जाती है, ऐसा लेयर बन जाता है। और वो लेयर भी कैसा रहता है, इट्स वेरी हार्ड लेयर। इट्स सेड इट इज हार्ड नेक्स्ट टू डायमंड, जो ये यहाँ पर जो क्रिस्टल फॉर्म, आई विल शो यू वन फुल वीडियो ऑन दिस, हाउ दिस एल्युमिनियम एनोडाइजिंग इज डन। तो इस एल्युमिनियम पे ये तो नेचुरली ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है एयर में, दिस नेचुरली ये क्रिएट होता है, एल्युमिनियम लेयर क्रिएट होता है। लेकिन हमको करना है, इसको फैक्ट्री में करना है, लेबोरेटरी में, तो उसको एनोडाइजिंग प्रोसेस से हम करते हैं। तो बेसिकली एनोडाइजिंग प्रोसेस, दिस लेयर कैन बी मेड ऑफ ए डिजायरेबल थिकनेस, मुझे कितना भी इसको थिक बना सकता हूं। और जो एनोडाइजिंग प्रोसेस होता कैसे है, एनोडाइजिंग प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। इलेक्ट्रो एनोड समझ गए ना बेटा, समझ गए होंगे एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस यूज करेंगे तो वही बीच टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो हम डाइल्यूट एसिड हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और फिर हम क्या करते हैं, कोई भी एल्युमिनियम आर्टिकल उसके अंदर डुबो देते हैं एज ए एनोड। मतलब मैंने इसको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया और इसमें मैंने एसिड ले लिया,
जो भी मेरे को लेना था, हाइड्रोक्लोर कुछ भी, और इसमें एज ए एनोड जो है वो मेरा रहेगा एल्युमिनियम। ऑब्वियसली व्हेन इट विल रिएक्ट, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी उसमें से, जो भी आपका डाइल्यूट एसिड रहेगा, और जो ऑक्सीजन है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली इट विल स्टार्ट रिएक्ट, और इसके ऊपर ये लेयर बनेगी। इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे उसमें जो लेयर बनेगी, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनेगी एनोड के ऊपर इन दिस आर्टिकल। सो दिस लेयर कैन बी मेड अट्रैक्टिव बाय एडिंग कलर्स, उसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं इस सेल्स के अंदर। एंड और ये बहुत सारे यूजफुल, आप घरों में ग्राइंडर्स में यूज और कुकर्स में भी यूज होता है ये प्रोसेस, एनोडाइजिंग हमारे मेटल्स। क्यों यूज होता है? सेम है, क्योंकि ये हार्ड है, स्टिफ है और स्लिपरी है। ये भी स्मूथ एक शाइन फिनिश देता है और क्लीनिंग में भी इजी है। नो लेट मी, अगर आपने मुझे यहां तक फॉलो किया, प्लीज राइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो लेयर बनती है एनोड के ऊपर, राइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। No, I will directly share that thing with you. Okay, now watch this carefully. So basically इसमें क्या होता है बेटा, जो ये एल्युमिनियम है अगर आप देखेंगे, ये एक स्पेशली, हमारा आपको मालूम है इसका एटॉमिक नंबर 13 है एल्युमिनियम का। इसका स्पेशलिटी क्या है? एल्युमिनियम जो है, जो बाकी जो कॉपर, आयरन है, या हमारा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उसमें भी रस्ट होता है। अगर आप देखेंगे आयरन में भी रस्ट होता है, कॉपर में भी रस्ट होता है, अपने सन में भी रस्ट होता है, एल्युमिनियम में भी रस्ट होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस किधर है? डिफरेंस है जब आयरन में रस्ट होता है या बाकी एलिमेंट में रस्ट होता है, उसको खा जाता है, ईट्स अवे, खत्म कर देता है एल्युमिनियम में कॉपर को। कॉपर पे रस्ट लगता है, आपने देखा होगा ग्रीनिश लेयर क्रिएट हो जाती है, इट ईट्स अवे। लेकिन एल्युमिनियम के ऊपर रस्ट उसको खाती नहीं है, उसके ऊपर एक लेयर बनाती है, दिस इज एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, विच प्रोटेक्ट्स एल्युमिनियम। सो यहां तक आप फॉलो कर पा रहे हैं? तो राइट एल्युमिनियम, राइट एल्युमिनियम फास्ट, इफ यू कैन फॉलो मी हियर। ओके, वेरी गुड। और अगर आप देखेंगे ये ना स्ट्रक्चर है, इट्स ए वेरी पावरफुल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसमें बनता है, और इसका हार्डनेस, इट्स लाइक नेक्स्ट टू डायमंड। दिस इज द काइंड ऑफ मोहल्स हार्डनेस स्केल। इसमें अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड देखेंगे, वो डायमंड के बाद है, इसका इतना हार्ड है। उसके बाद आप देखेंगे स्टील फाइल का है, फिर गिलास का है, फिर आयरन नेल का है, फिर कॉपर पैनी का है, या आपका फिंगर नेल का है। इट्स रियली हार्ड जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रियल बनता है। तो इसलिए इसको पूरे प्रोसेस को यूज किया जाता है। एनोडाइजिंग, इसको एक अच्छी तरह प्रोसेस बनाया जाता है, एनोडाइजिंग प्रोसेस। इस एनोडाइजिंग प्रोसेस में एक्चुअली टोटल 5 स्टेप्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, ये सब डिफरेंट 5 टैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 टैंक्स हैं। और ये जो है ये एल्युमिनियम शीट है। एल्युमिनियम शीट मतलब इधर पहले में क्या हो रहा है, पहले में कुछ होता है, जैसे विल सी क्या होता है, और ये इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली एल्युमिनियम पे शीट पे काम हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। इन पांचों टैंक्स में कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और फाइनली आपको आयो पूरा इसको एनोडाइजिंग एल्युमिनियम मिलता है पूरा। सबसे पहला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, जो भी ऑयल है या कुछ कचरा है वो वहां से सरफेस से निकल जाता है, इट जस्ट रिमूव्स फ्रॉम दिस प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। बेटा राइट, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस? राइट फटाफट, पहला प्रोसेस कौन सा है? राइट, हीट ट्रीटमेंट। पहला प्रोसेस कौन सा है? लिखो फटाफट, टाइप करो, सो आई कैन अंडरस्टैंड यू आर फॉलोइंग मी। यस, वेरी गुड वेरी गुड। हीट ट्रीटमेंट द फर्स्ट प्रोसेस जो पहली टैंक में होता है। फिर सेकंड टैंक में क्या होता है, यू हैव ऑप्शन, यू कैन गिव दिस एल्युमिनियम शीट मैट फिनिश, ब्राइट फिनिश और स्टेलिन फिनिश। आप कोई भी फिनिश दे सकते हैं। ये मैट है, ये स्टेलिन फिनिश है, ये अपना ब्राइट फिनिश है। आप कोई भी फिनिश इसमें दे सकते हैं। सम केमिकल्स आर एडेड इन दैट आल्सो। And after this tank, it will go to the third tank.
जिसमें एक्चुअली थर्ड टैंक में क्या होता है, आप एनोडिंग लेयर, दिस इज द वेयर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। यहां पर ये एनोड क्रिएट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है और एनोड का आप कितना भी थिक लेयर बना सकते हैं। देन फोर्थ प्रोसेस में इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली यू कैन ऐड डाइज टू दिस ऑक्साइड जो बनता है आपका, जितना आपका वो बनेगा उसमें आप ये कलर डाइज आप डाल सकते हैं। दिस इज द फोर्थ स्टेज। और इसमें आप अगर सॉल्ट डालेंगे, मेटल सॉल्ट, तो आपको और भी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। फिर देन फिफ्थ टैंक में इसको आप सील करते हैं, यू नो सी दीज ऑल सील्ड नाउ। जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बनाता है, यू जस्ट कंप्लीटली सील्ड इट, and when it is sealed, obviously it is ready. It is then coal, these they coils है, anodized coils हैं ये। फिर ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाता है, जहां पे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग होता है, पैनल मैन्युफैक्चरिंग होता है, एंड दे आर यूज्ड इन वैरायटी प्लेसेस। so this is about anodizing। तो आपको यहां पे समझा बेटा, राइट? व्हाट इज द सेकंड प्रोसेस, फास्ट? व्हाट इज द थर्ड, व्हाट इज द फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोसेस? right, fast beta, if you are following me right, what is the process? First process आप लोगों ने लिखा, what is the second process? No, third process is electrolysis. What is the second process? So always please keep making notes, don't do like this, huh beta? No one is replying, come on. Yeah, dying spelling is not DYING होता है। You type all 5 and then type here, लिखो पूरे 5, 1 2 3 4 5 and then यहाँ पे आप post करो, don't write one by one, so that I know you all have followed it. Yeah, we add colors, that is right. Then last is we seal it, and आपको coil बनाते हैं उसको, anodized aluminum coil, and then that is sent for manufacturing. And then you are right, all are right, very good. Coil anodized. फर्स्ट प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट है, वेरी गुड। विराज ने बोला हीट ट्रीटमेंट, वेरी गुड। फिर दूसरा क्या है, मैट फिनिश देते हैं आप उसको, या उसको ब्राइट फिनिश देते हैं, एंड सील, ओके गुड। तो बेटा इन शॉर्ट वी हैव वेरी 2 minutes only, but I think there is nothing much to discuss, so I will just tell you, you can just go through it yourself. देन नेक्स्ट जो है आपको जो बेटा प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेरेमिक, के बारे में डिस्कशन है। इट इज सेरेमिक। सेरेमिक कुछ नहीं है बेटा, सेरेमिक इज ए बेसिकली हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय नीडलिंग एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वाटर। तो इट्स यूज पॉटरी, सेरेमिक के बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। उसके बाद आपके इसमें है प्रोक्लेन, ये भी इट्स दिस इज हार्ड, बेसिकली ट्रांसलूसेंट व्हाइट कलर्ड सेरेमिक। इट्स यूज्ड इन व्हाइट क्ले एंड कॉल्ड, व्हाइट क्ले से बनता है जिसको नाम बोलते हैं इसको नाम बोलते हैं केओलिन। केओलिन यूज किया जाता है, ये चाइना में मिलता है। और दूसरा एक और है आपका बोन चाइना। इसमें एक्चुअली एनिमल्स के बोन डाले जाते हैं भाई, इसलिए इसका नाम बोन चाइना। और ये एक्चुअली हर घर में आपको डिशेस में चाय वाय पीते हैं ना, वो बोन चाइना जो व्हाइट कलर का डिशेस रहता है उसमें एडेड एज एश ऑफ बोन, एनिमल बोन्स आर मिक्स्ड। इसलिए अगर आप देखेंगे प्रियंका गांधी ने बहुत हल्ला किया था इसके लिए, बट इंडिया में बैन करो इसको, बट ऑब्वियसली स्टिल यूज्ड। और फिर एडवांस सेरेमिक है जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकेट वगैरह वगैरह यूज होता है। सो जस्ट गो थ्रू दिस, दे आर जस्ट, यू हैव टू जस्ट रीड इट, नथिंग मच complex. So with this we have completed our this chapter. So thank you so much. Please write nice note and send it to me. And if you have any doubt, please send me on my personal WhatsApp number. We'll definitely discuss in next class. Thank you very much. Hare Krishna.